सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन। मान लो मैंने आपको एक फंक्शन दे दिया y² + 2xy। ये मैंने पहला फंक्शन दिया आपको। दिस इज फंक्शन इन x एंड y, तो मैं इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख रहा हूँ। ये पहला फंक्शन है। ये दूसरा फंक्शन है cos ऑफ x बाय वाई। देन तीसरा फंक्शन है x और y में 2x - 3y, राइट। एंड चौथा फंक्शन है we can say fourth function is given to us as sin x plus cos y. इन चारों फंक्शंस में हमने क्या करना है? वी हैव टू रिप्लेस x by lambda x एंड y by lambda y। तो देखिए फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन में क्या होगा? इन फर्स्ट फंक्शन आपने x की जगह क्या रख दिया? lambda x। lambda x और y की जगह lambda y रखा, तो ये बना lambda y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू lambda x इंटू lambda y, तो बना lambda स्क्वायर y स्क्वायर प्लस lambda स्क्वायर फिर से इंटू 2xy। अगर आप देखें तो lambda स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर आ रहा है y स्क्वायर प्लस 2xy। सो बेसिकली अगर देखा जाए f1 lambda x lambda y is lambda square times f1 xy। This is the result that we obtain when we replace x by lambda x and y by lambda y. You have to tell me what do you get in f2 if you replace x by lambda x and y by lambda y. So f2 lambda x lambda y क्या होगा? It will be cos of lambda x by lambda y। lambda से lambda कट जाएगा, तो आपके पास f2 lambda x lambda y किसके इक्वल आ गया? cos of x by y के इक्वल ही आ गया। यानी मैं इसे लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0 cos of x by y, यानी मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ लैम्डा की पावर 0 इंटू f2 x, y। विश्वनाथ जी, ये क्लियर हुआ? यस सर। फिर थर्ड फंक्शन में देखें अगर हम, तो अगर मैं लैम्डा x लैम्डा y से रिप्लेस करता हूँ तो तो बन रहा है 2 2 lambda टाइम्स, x minus 3 lambda y, if you take lambda with common lambda common, you get, 2x minus 3y. yes, you get the same function f2 xy. And in the fourth function, if you replace x by lambda x and y by lambda y, what do you get? We get sin lambda x plus cos lambda y. Now out of these four functions, in f1 we obtain lambda square into f1 xy. In f2 we obtained lambda की power 0 f2 xy. In f3 we obtained lambda की power 1 f3 xy, right? But in f4 it is not equal to lambda raised to power n fxy. So whenever we have a function like this, if we replace x by lambda x
and y by lambda y, then function of lambda x lambda y becomes lambda की power n times function of xy. Then function is known as homogeneous. It's called homogeneous. So out of f1, f2, f3, f4, f1, f2 and f3 are homogeneous क्योंकि वो lambda की कोई पावर लेकर आ रहे हैं. But f4 is definitely not homogeneous. क्यों? क्योंकि इसमें से या तो lambda गायब हो जाए या कॉमन आ जाए, दोनों ही केस नहीं हो रहे हैं. So this is not homogeneous. सर और कॉमन कॉमन मतलब? कॉमन यहाँ पे देखो, कॉमन आया लैम्डा स्क्वायर, राइट. यहाँ पे आया लैम्डा, कॉमन आ रहा था. यस सर. इसमें लैम्डा की पावर 1 कॉमन आ गया. या कॉमन आ जाए या कैंसिल हो जाए. यहाँ पे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया था, तो राइट. होमोजेनियस. So whenever you can take lambda as common or it is cancelled, then only it is known as homogeneous. Otherwise, the equation is not homogeneous. So you will definitely get a question in paper asking first prove that it is homogeneous and then solve the differential equation. So आपको बोल सकता है वो कि पहले प्रूव करो कि ये होमोजीनियस है और उसके बाद सॉल्व करो. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, जैसे ये शो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट. सो पहले हम इसको ये प्रूव करेंगे कि ये होमोजीनियस है. कैसे? हमने इक्वेशन लिख ली, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू वाई. सो डी वाई बाई डी एक्स को पहले आप सेपरेट करेंगे, तो ये बनेगा x प्लस टू वाई divided by x minus y. Now, this dy by dx is behaving like a function of x and y because it is in the terms of x and y both. So replace x by lambda x and y by lambda y. If you replace x by lambda x and y by lambda y, you get f of lambda x lambda y equals to lambda x plus 2 times lambda y upon lambda x माइनस लेमडा वाई. बेटा जी लेमडा ऊपर से कॉमन आ गया, लेमडा नीचे से ऊपर आया x प्लस टू वाई, नीचे आया x माइनस वाई. तो बेटा देखो लेमडा से लेमडा कट गया, तो आप मुझे क्या बता सकते हो, क्या ये होमोजीनियस है? यस सर. यस. सो एफ ऑफ एक्स लेमडा एक्स लैम्डा लेमडा वाई नॉट इज लैम्डा वाई इक्वल टू लेमडा की लैम्डा. पावर 0 एफ ऑफ एक्स वाई, हेंस it is homogeneous. So this is how we prove an equation as homogeneous. Now homogeneous prove होने के बाद you have to solve it also. Solve it का मतलब आपको dy by dx दिया हुआ है, आपको y की टर्म्स में आंसर निकालना है. तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो ट्राई सॉल्विंग बाय वेरिएबल सेपरेबल. देखिए जो होमोजीनियस का क्वेश्चन होगा वो कभी वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व नहीं होगा. आप x और y को चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, x की टर्म्स अलग और y की टर्म्स अलग कर ही नहीं पाओगे. करना चाहते हो तो मैं आपको 1 मिनट दे सकता हूँ, करके देख लो, नहीं होगा. चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या जो भी करें, सारी अकेली x की टर्म्स एक साइड पे और सारी y की टर्म्स एक साइड पे होंगी ही नहीं.
सो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सर किस में वेरिएबल सेपरेबल लगाएं, किस में होमोजीनियस लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम में हो सकता है कि वो आपको डायरेक्टली सॉल्व करने को बोल दें, वो ये बोले ही ना कि होमोजीनियस प्रूव करो। सो इन दैट केस आपको खुद से पहचाननी है इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। इसकी एक रफ आइडिया अगर आपने लेना हो होमोजीनियस का, रफ आइडिया वो ये है कि x एंड y की पावर सेम रहती है। यहाँ पे देखिए x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिमेन्स सेम। अगर मान लो यहाँ पे साथ में एक्स वाई भी होता तो टोटल पावर मिलकर हो जाती 2। इन दैट केस इट विल नॉट बी होमोजीनियस। सो अगर आपको ओवरऑल पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिखाई दे रही है तो वो होमोजीनियस का ही क्वेश्चन होगा। नाउ हाउ टू सॉल्व अ होमोजीनियस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व करने का तरीका है, वी पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, y को हम वी एक्स डाल देते हैं, ऑल्सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लगेगा, v इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। नाउ जो हमारा क्वेश्चन था, वो हमारा क्वेश्चन था dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस टू वाई अपॉन x माइनस वाई। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस टू वाई अपॉन x माइनस वाई। इसमें जो ये dy बाई डी एक्स है इसकी जगह आ जाएगा v प्लस x टाइम्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू x प्लस टू वी एक्स अपॉन x माइनस वी एक्स। नाउ इफ वी मूव फर्दर वी हैव v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से x कॉमन आया 1 प्लस टू वी, नीचे से x कॉमन आया 1 माइनस वी, x से x फिर से कट गया तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी के इक्वल आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, हम v को लेफ्ट हैंड साइड पर लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास आएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस टू वी अपॉन 1 माइनस वी। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टू वी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। सो x इंटू डी वी बाई डी एक्स is equal to 1 plus v square upon 1 minus v. Now, after this, we can clearly see the terms in terms of two variables. One is v and other is x. So, we will apply variable separable here. तो वेरिएबल सेपरेबल लगाने के लिए क्या करें, dv अपनी जगह पे रहेगा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x dv इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी इंटू डी एक्स। नाउ डी एक्स के साथ सारी एक्स वाली टर्म्स रख लेंगे और डी वी के साथ वाली वी की टर्म्स रख लेंगे। हमारे पास आएगा 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। विश्वनाथ जी, डी एक्स बाई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? सर log mod x plus c। Yes. And how do we integrate 1 minus v upon 1 plus v square?
इसको कैसे इंटीग्रेट करें? सर पार्स सब्स्टिट्यूशन से। ना तो ये सब्स्टिट्यूशन से होगा, ना ही पार्शियल फ्रैक्शन से होगा, क्योंकि ये टाइप है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अच्छा। एनी आइडिया यस ये कैसे सॉल्व होगी? सर, इसमें ए ए एक्स प्लस बी बाय वन प्लस वी प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप तरीका सीख लीजिए इसको सॉल्व करने का क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास है वन प्लस वी ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन? डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक ये आ रहा है हमारे पास टू वी प्लस वन। सो यू हैव टू मेक डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, इस टू वी प्लस वन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास तो वी प्लस वन है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर को टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया, तो ये बना वन बाई टू ऑफ टू वी प्लस टू अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन। बट मुझे टू वी प्लस टू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए टू वी प्लस वन। तो क्योंकि मुझे टू वी प्लस वन चाहिए, इसलिए मैंने प्लस टू को ब्रेक कर लिया, टू वी प्लस वन और वन में रख लिया, राइट। अब अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, हो गया कौन सी फटाफट पेपर ले। अब मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, तो ये बना टू वी प्लस वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, राइट। साथ में डीवी है, डीएक्स नहीं है। अब वेरी क्लियरली इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो फर्स्ट इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा, वी हैव टू पुट वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन एस टी। इसको टी पुट कर दो, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, टू वी प्लस वन आ जाएगा डी टी बाई डी वी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, टू वी प्लस वन इंटू डी वी बिकम्स इक्वल टू डी टी। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है सारी डी टी बन गई, नीचे वाली चीज़ टी बन गई। तो डी टी अपॉन टी इज हाफ ऑफ लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू कितनी थी, लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन, एंड वी की वैल्यू कितनी थी, आपने पुट किया था वाई को वी एक्स, तो वी की वैल्यू हुई वाई अपॉन एक्स। तो फर्दर आपको इसमें लॉग वी की वैल्यू भी डालनी है, दैट इज वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस वन प्लस सी। ये तो पहला इंटीग्रल हुआ। दूसरा इंटीग्रल, दिस इज सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगेगा जी। उसमें क्या करना होता है, आपने वी स्क्वायर प्लस टू वी स्क्वायर वन ओवर वी स्क्वायर प्लस वी प्लस वन है जी आपके पास। हाउ टू सॉल्व इट, कोफिशिएंट ऑफ वी, कोफिशिएंट ऑफ वी कितना है, वन, इट्स हाफ वन बाई टू, इट्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर यानी वन बाई फोर। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो जी, तो प्लस वन बाई फोर माइनस वन बाई फोर किया, तो हमारे पास बना क्या, हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करनी है। वी स्क्वायर प्लस वी इसके साथ रख लिया वन बाई फोर, और वन माइनस वन बाई फोर अलग कर लिया जी।
तो ये जो तीन टर्म्स हैं ये किसका होल स्क्वायर है? वेरी क्लियरली दिस इज v प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड दिस इज 3/4। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 3/4 है, जिसे मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। उस दिन फॉर्मूला बताया था 1/x² + a²। क्या फॉर्मूला था जी? सर 1/a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। यस। तो यहाँ पे x का रोल प्ले कर रहा है v+½ और a का रोल प्ले कर रहा है √3/2। तो आपका आंसर बन जाएगा 1/√3/2 यानी 2/√3 tan इनवर्स v+½ बाय √3/2 प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब इसमें भी हम v की वैल्यू वापस डाल देंगे, दैट इज y/x प्लस हाफ इंटू √3/2, सॉरी डिवाइड बाय √3/2 प्लस सी। सो ओवरऑल आंसर प्लस लगा के जोड़कर लिख देंगे। सो वी विल यूज दीज टू टर्म्स टू राइट अवर फाइनल आंसर। एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म आई थी हमारे पास, इन दोनों को जोड़कर हमारा फाइनल आंसर बनेगा। So this is how we solve a question, full-fledged question on this is how, right? तो जो √3/2 मैंने नीचे लिखा हुआ था उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर उसको मल्टीप्लाई कर लिया। आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, जितने और लिखे हुए हैं सारे आंसर छोड़ सकते हो। यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी ये सारे जनरल सोल्यूशन है, राइट? तो आप इधर भी छोड़ सकते हो आंसर, इधर भी छोड़ सकते हो, इधर भी छोड़ सकते हो। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। सर वो जो y है उसमें हमेशा vx y को ही लेना है। हाँ, y को vx पुट करना है, लेकिन एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है जहां आपके पास आपको x को vy पुट करना होता है, वो है होमोजीनियस टाइप 2। वो क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा, आपको क्वेश्चन में x/y दिखाई दे रहा होगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, राइट? तो जिस क्वेश्चन में आपको x/y डायरेक्टली दिखे, क्या आपको दिखाई दे रहा है? जैसे यहाँ पे y/x डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, तो ये क्वेश्चन होमोजीनियस का है, ये तो आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। बट क्योंकि उसने शो करने को बोला है तो हम वही वाला मेथड लगाएंगे, पहले dy/dx अलग करेंगे, फिर y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से, x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से, और या तो कॉमन आ जाए या कैंसिल हो जाए, राइट? ये कैंसिल हो रहा है तो ये होमोजीनियस हो गया। इसमें y को vx पुट करके आगे आगे के सारे स्टेप सेम रहते हैं। हाँ, अब 17th एग्जाम्पल में आप देखोगे आपको x/y दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है x/y। जिस क्वेश्चन में x/y आता है डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में, वो होमोजीनियस टाइप 2 का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। मान लो मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा? सबसे पहले तो जी मैंने क्वेश्चन में से dy/dx अलग करना है, तो ये बना 2y e⁻x/y dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस 2x इंटू e⁻x/y dy। तो ये बना 2y e⁻x/y अपॉन माइनस ऑफ y माइनस 2x e⁻x/y dy/dx। तो dy/dx अलग करने से मुझे पता लग गया कि क्वेश्चन में x/y का रेशियो आ रहा है, जो कि एक होमोजीनियस इक्वेशन की टाइप है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? वी ऑलवेज पुट x इज इक्वल टू vy एंड वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो आपके पास ये आ जाएगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस
y इंटू डी वी बाई डी वाई। सर क्वेश्चन में तो आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाला हुआ है, कोई बात नहीं, इसको उल्टा कर दो तो डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा आपके पास। डी एक्स बाई डी वाई आ जाएगा माइनस ऑफ वाई माइनस टू एक्स इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई डिवाइड बाई टू वाई इंटू ई की पावर एक्स बाई वाई। मैं शो दैट नहीं करा रहा हूँ, वो तो आप आराम से कर सकते हैं, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे निकालना है। अब डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू आ गई, इसकी जगह हमने पुट कर दिया v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई। अंदर पुट करेंगे, x को वी वाई पुट करना था तो ये वाला तो y ही रहेगा जी, ऊपर वाला ये y माइनस टू एक्स की जगह वी वाई ई की पावर x बाई वाई। एक्स बाई वाई का मतलब हो गया v, तो टू वी वाई ई वी, नीचे आया टू वाई ई वी। देखिए न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी y कॉमन आ रहा है, माइनस वाई, अंदर आ गया वन माइनस टू वी ई वी अपॉन टू वाई ई वी। वाई से वाई गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो टू वी ई वी माइनस वन अपॉन टू ई वी, और डी एक्स बाई डी वाई की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू टू वी ई वी माइनस वन अपॉन टू ई वी। ये वाला v उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बना वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू टू वी ई वी माइनस वन ओवर टू ई वी माइनस वी। टेक एलसीएम, वाई डी वी बाई डी वाई, तो ये टू ई वी इंटू वी। देखिए बहुत ही आसान, टू वी ई वी कैंसिल हो गया, आपके पास बचा क्या, हमारे पास बचा जस्ट अ सेकंड। क्वेश्चन लास्ट स्टेप हमेशा वेरिएबल सेपरेबल होगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन में बचा कुछ खास नहीं, हमारे पास आया y इंटू डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू ई वी। सो यू कैन सेपरेट v वाली टर्म्स एंड y वाली टर्म्स, तो आ जाएगा टू ई वी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस डी वाई अपॉन वाई। यू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंगल स्टेप इंटीग्रेशन है। तो हमारे पास टू ई वी की इंटीग्रेशन हो जाएगी ई वी, एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन सेम रहती है, एंड वन ओवर वाई की इंटीग्रेशन हो जाएगी लॉग मॉड वाई प्लस सी। आप v की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए, दैट इज एक्स अपॉन वाई, तो माइनस लॉग मॉड वाई प्लस सी। उसने मांगा था पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, हम आंसर सी में नहीं छोड़ते, हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, सॉरी सी की वैल्यू निकालते हैं, हम पुट करते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ को। तो मैंने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, मैंने एक्स की वैल्यू डाल दी 0, वाई की वैल्यू डाल दी 1, तो बनेगा टू ई की पावर 0 माइनस लॉग 1 प्लस सी। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1, सो ई की पावर 0 1 होता है, लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो हमारे पास आया 2, सी का वैल्यू आ गया 2। तो फाइनल आंसर बनेगा टू इंटू एक्स ई की पावर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग वाई प्लस 2। दिस इज द फाइनल आंसर।
बोलो विश्वनाथ जी, क्लियर है? यस सर। अंजलि जी, आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. ऑलराइट। सो ये पूरी एक्सरसाइज इसी फंडे के ऊपर बेस्ड है जी। अब आप देखो, मान लो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया, शो दैट द फैमिली ऑफ द कर्व्स फॉर विच स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, दैट स्लोप ऑफ द टेंजेंट मीन्स dy by dx। तो आपको dy by dx आपको दिया हुआ है कितना, आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। आपको इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। इक्वेशन ऑफ कर्व का मतलब बेसिकली एक्स और वाई में आंसर चाहिए हमको। हाउ टू सॉल्व इट, वी विल सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ टू मेथड्स, वेरिएबल सेपरेबल, वो तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में प्लस आ गया। देन नेक्स्ट मेथड इज होमोजीनियस। लेट्स चेक, ओवरऑल पावर देखते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, और x और y मल्टीप्लाई हो गए तो मिलाकर पावर 2 है। सो बाय रफ आइडिया दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं रहा, होमोजीनियस ट्राई करते हैं जी। पुट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डिफरेंशिएट, तो dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू हम पुट कर देंगे dy by dx की जगह, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स is equals to v plus sorry x square plus v square x square upon 2x into vx। तो हमारे पास बना क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऊपर से कॉमन आ गया, अंदर आया 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर पहले से ही था 2v x स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर कैंसल्स विद एक्स स्क्वायर, तो बना v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v। x इंटू डी वी बाई डी एक्स किसके इक्वल आ गया, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v माइनस वी। फर्दर स्टेप्स में आप एलसीएम लेंगे, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, तो बना x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v। अगेन वेरिएबल सेपरेबल, v की तरफ v की टर्म्स रख लीजिए सारी, और dx की तरफ x वाली टर्म्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन भी बहुत आसान लेवल की है, 1 माइनस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो पुट 1 माइनस वी स्क्वायर एज टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 2v इज इक्वल टू डी टी बाई डी वी, तो ये बना 2v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2v डी वी की जगह हम लिख देंगे माइनस डी टी डिवाइड बाई टी is equal to dx upon x. So this is minus log mod t is equal to log mod x plus c. Now जब क्वेश्चन में दो लॉग आ रहे हों तो c को भी log c लिख सकते हैं। सॉरी, I can write this c as log c. So log m plus log n gives you log mn, so becomes log xc, right? आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। नाउ हमें पता है log m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है n log m। इन द सेम वे ये जो माइनस है, ये -1 पावर t के ऊपर चली जाएगी,
तो log t की पावर -1 इज इक्वल टू log xc। तो log से log कट गया, तो हमारे पास t की पावर -1 किसके इक्वल आ गया, xc। t की पावर -1 का मतलब 1/t इज इक्वल टू xc। t की वैल्यू कितनी थी, y बाई एक्स, तो x बाय वाई इज इक्वल टू xc, राइट। बट मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है आंसर में, कहीं सॉल्यूशन में तो कोई गड़बड़ नहीं हुई। चलिए देख लेते हैं, सॉल्व तो किया ही हुआ है बुक में। ओके, हमने वैल्यू पुट नहीं की है, राइट। पुट टी बैक कर दिया था। ओके ओके, हमने पुट टी बैक नहीं किया। टी की वैल्यू एक्स बाय वाई नहीं है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 + v² है। सो 1/1 प्लस, सॉरी 1 - v², 1 - v² इज इक्वल टू एक्स सी, और v की वैल्यू थी y बाय एक्स। तो जब आप 1 - y² बाय x² लेंगे और एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर टेकिंग एलसीएम यू विल गेट x² / x² - y² इज इक्वल टू x इंटू सी। सो दिस कैंसल्स आउट, तो आगे आपके पास x इज इक्वल टू सी इंटू x² - y²। आई थिंक यही हमने प्रूव करना था। उसने बोला जनरल सोल्यूशन ये प्रूव कीजिए कि जनरल सोल्यूशन किसके इक्वल आएगा, ये इक्वेशन ऑफ कर्व किसके इक्वल आएगी, x² - y² इज इक्वल टू सी एक्स। अब बच्चे को लगता है मेरा आंसर गलत आया है, हमारा तो आंसर आ रहा है x² - y² इज इक्वल टू x/c, आना चाहिए था सी एक्स। देखिए 1/c इज अनदर कांस्टेंट, लेट इट बी c डैश, तो x² - y² इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू एक्स, आंसर बिल्कुल वही है। सो ये एक तरह